یا اللہ الرحمن الرحیم رب، آپ مہربان اور دیالو کی آپ ہی کے کرم سے ہماری زندگی ہے، آپ ہی کی ذات بلند اور اعلیٰ مرتبہ والی، آپ اکیلے دنیا کی تمام مخلوق کے مالک اور خالق، ہر ایک ذی حیات کی ضروریات کو پوری کرنے والے بے مثال اور لامحدود آپ، زمین سے لے کر ساتوں آسمان کی ہماری سوچ سے بھی پرے آپ کی بادشاہت، ہم آپ کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ ہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے آخری رسول ہیں، جن کے دل مبارک پر آپ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ آئیے آج ہم بھی قرآن کریم کی کچھ آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اکیڈمی کے فاؤنڈر اور قرآنک عربی کلاسز کے فاؤنڈر، جنہیں اللہ العلیم رب نے قرآن کریم کے علم اور سمجھ سے نوازا تھا، انہوں نے قرآن کریم سے جو سبق حاصل کیے تھے انہیں آسان اور عام زبان میں ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ من مٹاؤ، ناراضگی، دشمنی اور آپسی رنجش کے فاصلے کم کیے جائیں، دیواریں چھوٹی کی جائے۔ یہی لیسن ہمیں سورت نمبر 11 سے ملتا ہے۔ ہمیں یہ پڑھنا، سمجھنا اور نتیجہ نکالنا ہوگا کہ سورت شریفہ 11 میں جتنی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ان کے اور ہمارے عمل میں کتنا فرق ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اثر و رسوخ والے، اللہ رب الناس کے آرڈرز کو نہیں ماننے والے لوگ آپسی انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں ان کے اسٹیٹس سے جج کرتے تھے، طبقاتی تقسیم کرتے، انسانوں کے بیچ من مٹاؤ کی دوری کو کم نہیں کرتے ہوئے اس دوری کو اور بڑھانے کا جرم کرتے تھے، مٹیریل سٹاک کرتے اور پرائز پمپ کرتے تھے، اسمال بزنسز کو مرجر یا کولیبریشن کے نام سے ہڑپ جایا کرتے تھے، اسمال بزنس مین کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ الخالق رب نے عذاب میں پکڑ کر لی۔ ہم سب لوگ بھی طبقاتی تقسیم والے کاموں میں مبتلا ہے، خونی رشتے اور قریبی رشتہ داروں اور برادران وطن سے برے الفاظ اور بد اخلاقی سے من مٹاؤ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ ہمارے قریبی لوگ ہم سے دوری بنانے لگتے ہیں، اور برادران وطن ہمیں ناپسند کرتے ہوئے ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ یہ بھی ہماری طرف سے کی گئی طبقاتی تقسیم کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہم سب کی پکڑ ابھی باقی ہے۔ عاد کی قوم کے اثر و رسوخ والے، اللہ رب الناس کے آرڈرز کو نہیں ماننے والے لوگ انسانوں کا شوشن کرتے اور انسانیت کو کچل کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے عذاب میں پکڑ کر لی۔ ہم لوگ بھی اللہ رب الناس کے انسانوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتے ہوئے خود کی پسند کے انسانوں کے ساتھ ہی اچھے بنے ہوئے رہتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کے ایموشنز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہم سب کی پکڑ ابھی باقی ہے۔ سمود کی قوم کے اثر و رسوخ والے، اللہ رب الناس کے آرڈرز کو نہیں ماننے والے لوگ محل اور مونیومنٹ بناتے، زمین کو ڈسٹرب کرتے، فساد کرتے، جانوروں کی چرنے کی الگ الگ جگہ پر قبضہ کرتے اور پانی کے جھرنوں پر بھی قبضہ کرتے تھے۔ پھر کیا تھا؟ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے اور اللہ الرحمن الرحیم رب نے عذاب میں نپٹا دیا گنہگاروں کو۔ ہم سب کا نپٹارا ہونا ابھی باقی ہے۔ دیکھا جائے تو صحیح معنی میں ہم سب اللہ کے ایمان والے بندے ہیں ہی نہیں۔ ہم لوگ خود کی کرتوتوں کے سبب عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے دین سسٹم پر آ جائے تو اللہ الناصر رب اپنے سسٹم سے تمام مصیبتیں آسان کر دیں گے۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 70، اس آیت شریفہ میں اللہ رب الناس نے ہم سے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے رسپیکٹ کی بنی آدم کی، لیکن ہم سب نے ہمارے ہی جیسے انسانوں کی رسپیکٹ نہیں کی جنہیں اللہ خالق رب نے ہم سے جوڑنا پسند کیا۔ ہم نے اللہ پالنہار رب کی اسی پسند کو
नापसंद करते हुए नाफरमानी की ज़िंदगी काटना पसंद किया और अब सारी दुनिया में नापसंद बनते जा रहे हैं, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। हम लोग सोचते ही नहीं कि हम भी तो अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन रब के अलावा अपनी मनमर्जी के ग़ुलाम बने ही हुए हैं, वह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही दी हुई मोहलत की वजह से। सूरत नंबर 16 आयत नंबर 61। वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। इंसानों के जुर्म करते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब में पकड़ करने लगे तो इस ज़मीन पर एक भी ज़ी हयात बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह अल अलीम रब ने अपने मोहलत के सिस्टम से इंसानों को सुधरने की मोहलत दे रखी है। उसी मोहलत का वक्त ख़त्म होने पर पकड़ का वक्त आ गया तो एक पल की भी जल्दी और देरी नहीं की जाती। इस मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए हमें किसी भी सही काम करने वाले का मुखालिफ नहीं बनना चाहिए। सही काम करने वालों की मुखालिफत वही करते हैं जो मज़हब परस्त सोच के लोग होते हैं, क्योंकि मज़हब परस्त सोच वाले लोग ही मसलक और तबक़ात में बटे हुए होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब परस्त सोच वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत की मुखालिफत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब परस्त सोच वाले लोग हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की मुखालिफत करते हैं। हम सब खुद को कामयाब कहने वाले हर उस इंसान की मुखालिफत करते हैं जो ओरिजिनल कुरान करीम पेश करता है, और हमारी नेगेटिव थिंकिंग इतनी मजबूत है कि हम सब समझे समझाए हैं, बख्शे बख्शाए हैं। क्या हमने कुरान करीम से सब कुछ समझ लिए हैं या आउट ऑफ कुरान बातें करते हैं? जबकि कुरान करीम में अल्लाह मालिक रब ने ईमान वाले लोगों की क्वालिटी बताई है। सूरत नंबर 25 आयत नंबर 73। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वह लोग जिनके सामने उनके रब की आयत भी पेश की जाए तो भी उसे बिना चेक किए अंधे और बहरे की तरह मान नहीं लेते, और हम लोग तो आउट ऑफ कुरान बातें सिर्फ इसलिए मान लेते हैं कि हमारे बड़े कह रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ओरिजिनल कुरान करीम सही है या आउट ऑफ कुरान। आगे बढ़ते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के गुनाह गंदे गंदे बेहयाई के व तक़्तऊन सबील वाले काम करते थे। व तक़्तऊन सबील को दो मायनों से समझ सकते हैं कि फहाशी की वजह से इंसानों की पैदाइश का रास्ता काट देना, या हाईवे रॉबरी यानी लूटमार करके इंसानों की अमन की ज़िंदगी का रास्ता काट देना। दोनों ही मायने में रॉबरी से समझ सकते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी की रॉबरी, दूसरा इंसानों के माल की रॉबरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब में ऐसा पकड़ा कि ज़मीन ज़लज़ले से उल्टा दी गई, पत्थरों की बरसात के साथ कंकरों से प्लास्टर करा दिया गया। हम सब भी तो इंसानियत की इमोशंस के रॉबरी मास्टर हैं। किसी को बुरा कहना, उसका दिल दुखाना, किसी ने कुरान करीम से बात सामने लाई तो हमें पसंद नहीं आती, बात को बिना चेक किए हम उसी को गलत कहते हैं। सामने वाला सब्र करता है तो सामाजिक तौर पर बुरा कहने लगते हैं, फिर भी सामने वाला सब्र करता है तो सामाजिक तौर पर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं। खुद से दूरी बढ़ाते हुए दूसरे इंसानों के दिलों में भी दूरियां बढ़ाते हैं। दूसरे सुनने वाले इंसान भी बिना चेक किए गुनहगार बनते जाते हैं, बिना कुरान करीम से उसकी बात को चेक करते हुए। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। ये आयत शरीफा पढ़ने के बावजूद चेक नहीं करते, रिश्तेदारियां नहीं सुधारते। हम सबका भी नंबर लगने वाला है, अज़ाब आने ही वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम मदियन या असहाबुल ऐका के नाम से जाना जाता था, यह फॉरेस्ट कॉमर्स बिजनेस वाली कौम के लोग दाम पूरे वसूल करते थे लेकिन सामान पूरा नहीं देते थे, जिन्हें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मैसेज पहुँचाया। सूरत नंबर 11 आयत नंबर 85। व या कौम औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त। ऐ मेरी कौम, तुम पूरा करो नाप और वज़न इंसाफ के साथ।
यहाँ बात सिर्फ तेल को नापने के नाप और किलोग्राम से गिनने वाले तराजू की ही होती तो हमारे यहाँ इस जगह सुनने वाले बिजनेसमैन मौजूद हैं जो कि अपना कारोबार इंच और फीट से करते हैं। फ्रूट वाले दर्जन से अपना कारोबार करते हैं। कई सामान 100 पीसेस से और कपड़ा तो मीटर से भी बेचा जाता है। जबकि कुरान करीम बात करता है मिक्याल वल मीज़ाना के बारे में कि कौम मदियन या असहाबुल ऐका इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस मेंटेन नहीं करते थे। उनका यह मेन जुर्म था। इस कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंजाम तक छूट दे रखी थी। वक्त पूरा हुआ, अजाब आ गया। हम सब भी अपने अपने जोन में हैं, हमारा भी वक्त पूरा होने वाला है। मिक्याल वल मीज़ाना यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस हम लोग भी मेंटेन नहीं करते। हमें भी हमारे लेन देन के मामलात और अखलाकी मामलात पर मेहनत करके ख़ुद का सुधार करने की ज़रूरत है। आज हम सबके पास इंटरनेट वाले मोबाइल हैं और बहुत आसानी से हम बैठे बैठे इन कौमों की जगह विज़िट कर सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के ज़रिए हमसे कह रहे हैं कि वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। इन कामयाब आबादियों की खुद की हरकतों से बर्बाद हो चुकी दास्तानों की खामोशियाँ तुम मुजरिमों से यानी हम गुनहगारों से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अभी हम सब मोबाइल में टाइप करके विज़िट कर सकते हैं। आज मैंने सूरत नंबर 11 से जिन कौमों की स्टडी पेश की है ये सारे जुर्म हम सब में मौजूद है। हमें कंपेयर करना चाहिए और कुरान करीम के दायरे में ख़ुद से ही सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इन कौमों को उनके जुर्म पर बेमिसाल सज़ा मिली। अब बचे हम सब, तो हम लोगों में ये सारे जराइम पाए जाते हैं। हमारा क्या हाल बनेगा जब तमाम जुर्म की सज़ा मिलने लगेगी। कुरान करीम में हर आयत हमें अलर्ट करती है और ये आयत हमें अलार्म भी करती है सुधार का। ए इंसान, अब भी तू खुद का सुधार कर ले, वरना मौत तो तेरे पीछे लगी हुई है। जिस रोज़ ज़िंदगी पूरी होगी हाय अफसोस भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। सूरत नंबर 9 आयत नंबर 1-6। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून। क्या ये इंसान देखता नहीं कि हर साल हम उसे एक या एक से ज़्यादा वार्निंग देते हैं खुद की बिगड़ी बनाने के लिए, फिर भी ये इंसान तौबा करके ख़ुद की कामयाबी के लिए पलटता नहीं और ना ही उस वार्निंग से ख़ुद के सुधार की बात समझता है। मैंने इसके पहले भी कहा है कि कुरान करीम की आयतों के किसी भी लफ्ज़ को सिर्फ़ एक मायने तक ही महदूद न कर लिया जाए। पढ़ी गई आयत शरीफा में कुल्ल आम का वर्ड आया है। आम तौर पर इसे हर साल से समझ सकते हैं, लेकिन ज़रा गहराई से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक साल पूरा होने की एक मुद्दत होती है। हर मुद्दत के सेक्शंस होते हैं, जैसे साल, उसके 4 सीज़न, महीने, हफ्ते, दिन, घंटा, मिनट और सेकंड। ये सब एक साल की मोहलत को कंप्लीट करने के सेक्शन हैं। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदा लाइफ के भी सेक्शन हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, निकाह, मैरिज, शादी, ब्याह, वलीमा, कपल की एनिवर्सरी, इंसान का बर्थडे हर साल आता है, मर गए तो मैयत, बेटी हुई तो प्रिंसेस, बेटा हुआ तो प्रिंस। इनमें से कई इवेंट्स को हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन इन इवेंट्स को हम अपनी फ्रेश बर्थ यानी पैदाइश समझकर अपने आमाल और रिश्तों को सुधारने की पहल भी नहीं करते। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून। क्या ये इवेंट्स हमारे लिए आयत शरीफा में आई हुई मोहलत नहीं है? हम में से बहुत सारे लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, बहुत सारे लोग 1 से 4 वक्त की ही नमाज अदा करते हैं, कई लोग हर हफ्ते में मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कई लोग साल में सिर्फ 2 मरतबा ईद की नमाज अदा करते हैं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून। क्या ये नमाज के टाइमिंग्स हमारे लिए आयत शरीफा में आई हुई मोहलत नहीं है? क्या ये हमारे लिए मिले हुए वक्त की वार्निंग नहीं है कि हम लोग हमारे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारते हुए अपने बिगड़े आमाल भी सुधारें? सूरत नंबर 11 में
عذاب پانے والے لوگوں سے ہم خود کے حالات، عمل اور اخلاق ملا کر دیکھیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے ہم بھی انہی گناہوں کی پرچھائی میں زندگی گزارتے نظر آئیں گے۔ ایک بات ہم سوچیں کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم موجود ہے اور آؤٹ آف قرآن لٹریچر بھی ہے، کیا ایک آیت یا ایک بات ایسی ملی کہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انسانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی اور انہیں گرانے والی چرچائیں کی ہو، یعنی گوسپ کیا ہو، بات چیت کی ہو؟ اگر نہیں تو پھر ہم سب لوگ قرآن کریم اٹھائے ہوئے کن غیبتی خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ قرآن کریم کے ذریعے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ ایسی بات چیت، ایسی چرچائیں، ایسی گوسپ نہیں کرو یا ختم کر دو جو اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے انسانوں کو گراتی ہو۔ ہم لوگ اپنی کامیابی کے لیے خود کے ایگو کو گرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو گراتے گراتے جہنم میں گرنے کو تیار ہیں۔ افسوس ہے ہم سب پر۔ ابھی جو آیت شریفہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں یا قوم کہا گیا ہے۔ اب اگر ہم واقعی میں حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہیں تو اس آیت شریفہ کا پیغام ہمارے لیے ہی ہے۔ کیا ہمیں مرنے کا خوف نہیں؟ کیا ہمیں جہنم کا خوف نہیں؟ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔